میری طرف سے اور نیو یروشلم فیملی کو بہت زیادہ کھجوروں کا یہ اتوار بہت مبارک ہو. یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ استقبال آپ سب کو بہت مبارک ہو. مقدس کلام میں سے آپ نے بہت سارے حوالہ جات سنے ہیں، لیکن اس حوالہ کو بھی سنے گے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور آگ بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. مسیح کا شاہانہ استقبال. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ میں کس بھیڑ کا حصہ ہوں. یہ ایک بڑی بھیڑ ہے جو یسوع مسیح کا استقبال کر رہی ہے، جو یسوع مسیح کے لیے کھجوروں کی ڈالیاں. اور آپ چاروں اناجیل کو پڑھیں تو چاروں اناجیل کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ بہت ساروں نے کھیتوں سے بھی ڈالیاں کاٹی. کسی کے پاس کھجوروں کی ڈالیاں ہیں اور وہ یسوع کا استقبال کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو اس بھیڑ کے ایسے جذباتی ہیں، انہوں نے یسوع کے راہ پر کپڑے بھی بچھائے ہیں، انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں، اپنا ٹائم بھی دیا ہے. یہ شادمان بھی ہیں، اور ایسے شادمان ہیں جنہیں دیوانے ہی لے لیں. گیت اسی بھی گل نہیں ہے، دیوانیاں نو گاتی پڑھا. یہ ایسے دیوانے معجزات ہو رہے ہیں، یہ یسوع کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے اس بھیڑ کے اندر معاملات کیا ہیں اس پر بھی غور کریں گے. یہ بھیڑ اپنے اپنے ایجنڈے رکھتی ہے. یہ مذہبی لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، یہ سیاسی بھی لوگوں کی بھیڑ بھی نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ ان کے ایجنڈے ہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے ایجنڈے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں کہ یسوع ہمارے یہ کرے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے بیماروں کو لے کر وہاں آئے ہوئے ہیں کہ یسوع بادشاہ جو ہے وہ شفا دے گا میرے مریض کو، وہ اس کو چھو دے گا. یہ ان کی ضرورت تھی. کچھ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ چلو جی روٹی شوٹی کھاواں گے کیونکہ یسوع تے روٹی بھی دیندا سی. یہاں پر کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں جو کیا کر رہے ہیں کہ آج رومی تسلط سے ہمیں رہائی ملے گی، اس کی حکومت کا تختہ ہم الٹ دیں گے. اس کے اندر مذہبی لیڈر بھی ہیں جو اس بات کے پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں نعرے کیا لگ رہے ہیں، یہ ہے کون ہے، اس کے بارے میں بھیڑ کیا کہہ رہی ہے. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہے یہ ہے کون، اور پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. کوئی کہہ رہا تھا ایلیا ہے، کوئی کہتا ناصرت کے شہر کے اندر بھی یسوع ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اس کے بارے میں. آج بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کون ہے. یہ تلاش جاری ہے. اور اس میں یسوع کی ذات میں پیشن گوئی کا پورا ہونا جو زکریا 9 باب کی 9 آیت میں لکھی ہے، اے بنت سیون تو شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. یہ
इस बात पर भी नजर टिकाई हुई है मजहबी लीडरशिप कि क्या आया ये वही बादशाह है जो सुलह का मुद्दा दे रहा है, जो हमें रोमी हुकूमत के तसल्लुत से रिहाई देगा। और वो अपने अपने एजेंडे लेकर आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो वो गधे पर सवार, और गधे पर सवार होना ये हलीमी की अलामत है। वो खाकसार बन गया, और कलाम में लिखा वो देख वो हलीम है और गधे पर सवार है, क्योंकि वो सुलह का मुद्दा देने आया है। तो जो जंगजू लोग थे, जो सियासी लोग थे, वो इस बात से परेशान हो गए कि ए तो भाई बड़ा ही हलीम है, गधे पे सवार आ गया। जो जंग करने वाला बादशाह है वो तो घोड़े का सवार होगा। हाँ, एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, और उसके पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ होगा कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। उस वक्त वो लोहे के असास से हुकूमत करेगा। लेकिन अभी वो गधे पर सवार है, अभी वो हलीम है, अभी वो फरोतन है, अभी वो सुलह का मुद्दा दे रहा है। ये भीड़ ऐसी भीड़ थी, ये इस तरह से सोच रहे थे, उनकी जरूरतें उनके सामने थी। आज हमारी जरूरतें भी हमारे सामने हैं। हमने नारे लगाए हैं होशाना, हमने नारे लगाए हैं बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, लेकिन क्या उस भीड़ के लोगों की तरह मेरे भी कुछ एजेंडे हैं, मेरी भी एक लिस्ट है जो मैं यीशु के सामने रखता और रखती हूं, और लेकर आए हैं कि यीशु ऐ काम करने ने। यानी हमने यीशु को इसलिए मुंतखब किया है, इसलिए यीशु मेरा और आपका इंतखाब है कि मेरा घर तमीर करेगा, मेरे बच्चे को कामयाब करेगा, मैनू चंगी नौकरी लेके देगा, और फटाफट सवेरे मंगागा तो शामी वो कर देगा। अगर ते एक कर देगा तो फिर ते एक बादशाह दा बादशाह ते यीशु बादशाह है, जे नहीं करदा ते भाई फिर सानू ते मंगल जाने दौड़ी होगी। जब ये वहां आए, मोसे भी देख रहे हैं, पर इनको खातर का कोई मामला सेट होता नजर नहीं आया। ये गधे पर सवार है, ये तो हलीम है, ये तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा। लोग भी इकट्ठे हैं, नारे भी लग रहे हैं, लेकिन इन्हें लगा कि ना हमारी जिस्मानी जरूरत पूरी हो रही है, ना हमारी सियासी जरूरत पूरी हो रही है। और मजहबी लोग तो इस बात से और ज्यादा कायफ हो गए कि भाई ये तो अपने आप को बादशाह भी कह रहा है, अपने आप को खुदा का बेटा भी कह रहा है। उन्होंने नए फतवे इसके खिलाफ जोड़ने शुरू किए, और ये भीड़ ये खतरनाक बन गई जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं। और हमारे साथ कैसा होता है, जब तक यीशु हमारे काम आता रहता है, हमारे काम करता रहता है, सवेरे शाम साढ़े पानी ढोंदा रहता है, साढ़े तक रोटी आउंदी रहती है, उदों तक ते यीशु बादशाह ते जितना थोड़ा जिहा मामला साडी मर्जी के खिलाफ होया, असीं दुआ ही करनी छड्ड दित्ती है। मैं ते उदों दी यीशु नाल लड़ाई है मेरी, ते हुण मैं ते गिरजे जाना छड्ड छड़िया, हुण मैं ते दुआ करनी मंगनी छड्ड छड़ी हुण, क्योंकि मेरा मसला हल है यीशु ने मैं मंगया, उन्हें मैनू नहीं दिता। की सीगा दे देंदा, क्योंकि हम मुख्तलिफ तरह के झंडे रखते हैं। अब उनका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि बाद जब हम हर्ट हो जाते हैं कि वो एजेंडा मेरे साथ जुड़ रहा होता है। तो आप देखें कि आपने खुदावंद को किस लिए रखा हुआ है। अगर वो जरूरत पूरी करे, अगर वो मेरी मन की मुराद पूरी करे तो यीशु बादशाह, लेकिन अगर ना करे तो फिर ऐसे यीशु के बड़े खिलाफ। और इस भीड़ ने क्या किया, यही किया जो आज हम भी कर रहे हैं, यीशु के खिलाफ हो गए। जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। इसी भीड़ ने चंद दिनों के बाद ही अपना रंग दिखा दिया, जिवें आज दा ईमानदार रंग वहांदा है, गिरगड़ की तरह रंग नहीं बदलते। मान गए यीशु ने गल कर दी, हो गई जरूरत पूरी, तो फिर क्या यीशु दी, जो नहीं होई तो फिर यीशु का साडा तालीम को नहीं गा। और इन्होंने ऐसा किया सेम, इस भीड़ ने चंद दिनों के बाद ये उन लोगों में शामिल हुए। मसीही लीडरशिप ने क्या किया, यूदास के युद्ध को त्याग के उसको पकड़वा गई। उनका अपना तरीकाकार। सियासी लीडरशिप ने उसको अदालतों में घसीटा,
उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया था और अच्छी तरह से यीशु को के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, झूठे गवाह भी खड़े किए। चल होन देख फिर ये साडा काम नहीं करना तो ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇ। फिर हम भी यही कह रहे हैं जे यीशु साडी मदद नहीं करेगा ਆਪਾਂ ਦਾਈ ਕਿਦਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ करना ਹੁਣ, ਅਸੀਂ टाइम ਨਾਲ नहीं जाना करना ਹੁਣ। ये भी इन्होंने भी ऐसे ग्रज निकाला, इनके अंदर एकदम से गम और गुस्सा और गम और गुस्से का इजहार इन्होंने इस जगह पर जो पाम संडे को हम मना रहे हैं, इस खास मौका पर जो इनके नारे थे, जो इनका दीवानापन था, जो इनका जोश था, इससे ज्यादा इन्होंने पिलातुस के महल में जाकर दिखा दिया, उसके गले में जाकर इससे ज्यादा नारे दिखाए। क्या नारे थे? इससे सलीब दे। इसने क्या से ना मारो, ये उससे ज्यादा गम और गुस्से में थे। अगले दिन साड़ी दिन जरूरत पूरी की थी। आज देख पिलातुस उसे छोड़ना भी चाह रहा था, लेकिन इस भीड़ ने ऐसा इरादा उसे करने भी ना दिया। वो और भी चलाए, वो और भी चलाए। ऐसा लिखा है इनका इतना गम और गुस्सा था। साडा भी इंज गुस्सा यीशु के खिलाफ हो जाता है। नहीं ठीक किया मेरा मुंडा, नहीं पास की मेरी कुड़ी, नहीं मेरे पुत्र दिता दे छड़दा कि की सीगा, नहीं दिता तो चल फिर असं तेरे खिलाफ होना। तू साडे कुछ भी नहीं किया, तू साडा मकान नहीं बनाया, तू साडी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तू साडा बच्चा नहीं पास किया, की सी हो जाता। हमारे अपने एजेंडे हैं, गौर करेगा। उस ये जो नारा आज हमने लगाया है ये हमेशा ही रहना चाहिए। होशाना का नारा हमेशा रहना चाहिए। लेकिन हम अफसोस हम इस नारे को भूल जाते हैं जब हमारा गुस्सा खुदावंद के खिलाफ आता है इस भीड़ की तरह। और पिलातुस ने एक और चांस लिया इस भीड़ से, इनके गमों गुस्से को ठंडा करने के लिए एक और चांस लिया। इन सब के सामने उसने अपने हाथ ही धो दिए दाकर पानी। इसका मतलब की सीगा, मैं इहदे खून तो पाई बरी हूं। फिर कहा मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। तो भीड़ ने क्या नहीं, इसको क्या दे, वो और चलाए, वो और चलाए। और लास्ट में पिलातुस ने एक और चांस भी दिया। उसने कहा हर ईद पर तुम्हारी खातिर मैं एक को छोड़ देता होता हूं। आज बराबा है और यीशु नासरी है, मैं तुम्हारी खातिर यीशु नासरी को छोड़ दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, इसे ले जा, इसे सलीब दे और हमारी खातिर उसको छोड़ दे जो बराबर है, जो खूनी है, बदकिरदार है, जो कातिल है, जो बागी है, जो शहर में फसाद बर्पा करता है, जो दहशतगर्द है, उसको छोड़ दे। फिर कहते हैं ऐसे इतना तो फिर वही चंगा होया ना। फिर ए गल उन्होंने दिमाग छिटाई, इतना तो वो चंगा भावें जिवें दी है मुंह दा भैड़ा पर दिल दा चंगा है। साडे फिर ए गल्लां ने साडियां बराबर दे दो, उंज भैड़ा वे, गुस्से वाला वे, बागी ये बदकार है, पर दिल दा बड़ा चंगा ओ दे दो। यीशु ने कहा, यीशु ने हमारा कोई काम नहीं किया। इस भीड़ का ये कहना था। हम किस भीड़ का हिस्सा? भीड़ की कोई शक्ल सूरत होती है, उनके अपने एजेंडे होते हैं, हमने इसका हिस्सा नहीं बना। इनके मामला बड़े अजीब थे। ये इस तरह से नारे लगा रहे थे, अपने काम उससे निकलवाना चाहते थे, मोज़े करना चाहते थे, जरूरतें पूरी कर मेरी कर दे, मेरी मर्जी ना दुआ सुनी जाती रहेगी तो ओके, मेरी नहीं मंडी कि कोई दुआ भी नहीं करनी मेरे बेटियों, दुआ नहीं रोक दिया, रिहाई नहीं दिलाई। और इनका मसीह के बारे में ये कहना कि भाई अब इसका हमारे दरमियान रहना खतरे से खाली नहीं है। मुकाशिफ नाम में आइए, एक और भीड़ का यहाँ पर जिक्र है, इस भीड़ को देखें। मुकाशिफ 7 बाब उसकी 9 आयत, ये क्या कह रही है? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी
ऐसी बड़ी भीड़, गौर कीजिएगा मेरे अजीज बहन भाइयों, जिसे कोई शुमार नहीं कर एक सकता, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने, और खजूर की और कौन सी डालियां इनके हाथों में हैं? इनके हाथों में भी खजूर की डालियां हैं। और ये जो यीशु को कह रहे थे कि होशाना, इनके हाथ में भी खजूर की डालियां थी, पर इनकी सूरत बाद में बदल गई, चेंज हो गई, इनके नारे चेंज हुए। इनके नारे क्या है? इनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। ये आसमान पर का मंजर है जिस भीड़ का मुझे और आपको हिस्सा बनना चाहिए और बनना है। वो सफेद जामे पहने हुए हैं, खजूर की डालियां अब उनके हाथों में है, और क्या कह रही हैं? तख्त और बर्रा के आगे और तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती है, ओ प्रेज गॉड। ये भी होशाना ही कह रहे हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, और जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। इस भीड़ के लिए जोरदार ताली जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये निजात देने वाला है। ये जो यरूशलेम की भीड़ है, ये नहीं जानती कि ये कौन है। यरूशलेम की भीड़ पूछ रही थी ये कौन है, लेकिन ये भीड़ जो आसमान पर जिसका मंजर यूहन्ना ने देखा है और उसे रकम कर दिया है, ओ हालेलुया। मैं शादमान हूं इस बात से कि आसमान पर भी खजूर की डालियां हमारे हाथों में होंगी, आसमान पर भी ये मंजर होगा। बस सफेद जामे पहने होंगे, डालियां हाथों में होंगी। ये फतह की अलामत है। ये भीड़ ये सिर्फ महज रस्मी दिखावे की फतह की बात कर रहे थे, ये बदल गई, लेकिन इनका नारा नहीं बदला। निजात हमारे खुदा की तरफ से है, ये जानते हैं ये निजात देने आया है, ये बर्रा है खुदा का। ये भीड़ नहीं जानी कि ये बर्रा है। इसके बारे में यूहन्ना ने कह भी दिया था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां तक गुनाह उठा ले जाता है। इस भीड़ का नारा जबरदस्त है। ये कैसा जबरदस्त नारा लगाकर कह रहे हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से। 4 बाब की 9 आयत में पढ़ दीजिएगा, इनका नारा और कैसा है। इस भीड़ का जानदार उसकी तमजीद, हाँ जी, और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे, हाँ जी, जो तख्त पर बैठा है, हाँ जी, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। तो वो 24 बुजुर्ग जो उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़े और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि आए हमारे खुदावंद, हमारे खुदावंद, और खुदा ही की तमजीद, और खुदा ही की तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। ऐ हमारे खुदावंद और खुदा तू ही। ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। इस भीड़ के नारे चेंज नहीं हुए, ये दीवाने नहीं सारा ऐसी हमें मजहबी बन गए हैं और दिखावे के लिए रस्मी है। हमारी जिंदगी के अंदर रूह का काम नहीं होता, इससे नारा चेंज हो जाता है। जरूरत मतलब है चार रसूल इस्लाम का लेना, लेकिन ये रूहानी है जिनकी जिंदगी में रूह का काम हुआ है, वो आसमान पर जाकर भी यही कहते हैं कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। इनका ये नारा है। और 5वें बाब की 11वीं आयत में भी इनका नारा सुनिएगा जी। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों है। ये तो चंद लोग थे ना जो बदल गए, जो चला उठे, जो अपनी जरूरतें लेकर आए थे। खुदा इससे ज्यादा इज्जत के लायक, उसकी तमजीद जो है वो लाखों और करोड़ों फरिश्ते भी करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है उनका शुमार लाखों और करोड़ों है। और वो बुलंद आवाज से साढ़े बाद में दुआ करना आवाज भी निकलती ना। वो जो कह रहे थे ना जिसे सलीब पे चला रहे थे, उनसे भी ज्यादा आवाज आसमान पर उस बर्रे के लिए है। वो क्या कह रहे थे?
से कहते थे कि कि ज़िबा किया हुआ बर्राई कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। ये उसकी तमजीद है, ये उसकी सताइश है, ये उसकी बुराई है, ये उसकी सताइश है, ये उसको होशाना कहना है, ये उसकी निजात का झंडा लहराना है, ये खजूर डाली आंखों में लेकर कहना है। और फिर ये नारा चेंज नहीं हुआ। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अपनी जात के अंदर इसको ले, इस बादशाह को, और भीड़ का हिस्सा बने तो इस भीड़ का हिस्सा बने निजात पाकर। गुनाहगारियां की तरह आज किते कल किते, वो भीड़ उसको छोड़ दे, उनके नारे भी छोड़ दे, इस भीड़ का हिस्सा बन जाए जो सफेद जामे पहने थे, जो नारे चेंज नहीं करते, जो जानते हैं कि ये निजात देता है, जो जानते हैं कि निजात इसके हाथ में है, जो जानते हैं कि ये कदूस है, ये हिकमत से भरा है, जो जानते हैं कि ये जल्द आने वाला है, जो जानते हैं कि हारने के काम की माफी देने के लिए अजल इसके पास है। इन पेशेवर गोइयों पर चले जो उसके हक में कहेंगे कि उसने पूरा किया। हम इसको अपना लें। जब अपना लेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में कभी भी लंगड़ापन नहीं आएगा, कभी भी लड़सश नहीं आएगी, कभी भी कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि हमारा नारा चेंज नहीं होगा और हम उसको सिर्फ जरूरत के तहत नहीं पहुंचेंगे, जरूरत के तहत उसके पीछे चलेंगे, बल्कि डीपली रूहानी हमारी जड़ें उसमें मजबूत हो जाएंगी और हम उसमें पाए जाएंगे और आसमान पर हमेशा उसके साथ रहेंगे। खुदा इस काम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। अपने आंखें बंद कीजिएगा और शुक्रगुजारी करेंगे। सब शुक्रगुजारी करेंगे, सब आंखें बंद कीजिएगा, शुक्रगुजारी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे दुआ में।